Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School. Today is 30th June 2020 and we are studying Chemistry Pre-9th Chapter number 1 Fundamentals of Chemistry. Today is lecture number 20. Dear students, in the previous lecture we have studied about empirical formula, long question, molecular mass and formula mass, and example number 1.2 and 1.3. We have solved the example 1.2 and 1.3 and we have discussed the long question of empirical formula. Well, dear students, in today's lecture we will study and solve test yourself 1.4, concept of ions and cations and anions, concept of ions and cations and anion with examples. Dear student, this is page number 14 of your textbook and we have completed example number 1.3. On page number 14 we have test yourself 1.4 to solve. So dear students, in this lecture, as I have discussed in starting of this lecture, then we will solve test yourself 1.4. So what is the relation? The first question is, what is the relationship between empirical formula and formula unit? So dear student, we have already told you in the previous lectures that ionic compounds have formula unit. So the ionic compounds are held together in a network structure. So we only take empirical formula of ionic compounds. We, instead of writing their actual formula, we just write the empirical formula, which is the simplest whole number ratio of a compound. Because in ionic compounds, again and again the same pattern and the same formula is repeating. So we choose a formula unit which is a repeating unit and we can say that it is an empirical formula. So relationship of empirical formula and formula unit is that we have to write down their definition and give them the examples. Question number 2, how can you differentiate between molecular formula and empirical formula? So you, in this question of test yourself, you have to write the definition and examples of the both of the two. And the third one is, identify the forming formula as formula or unit molecular formulas. H2O2 CH4 C6H12O6 C12H22O11 BaCO3 and KBr. So we solve this test yourself. So I have solved test yourself on the notes. So I am sharing with you the notes and we will study from there. Well, dear students, here you can see test yourself 1.4 and the question is, what is the relationship between empirical formula and formula unit? So to write down the relationship, we just write in words that how formula unit is related with empirical formula. So in the starting we have written the definition of empirical formula, that empirical formula is the simplest whole number ratio of atoms present in a covalent compound. For example, the covalent compound silica has simplest ratio of 1:2 of silicon and oxygen atoms respectively. Therefore, its empirical formula is SiO2. So in empirical formula in ionic compounds, formula unit is defined as simplest whole number ratio of ions. So this line is very much similar to the empirical formula definition as present in ionic compounds. In other words, ionic compounds have only empirical formula. Their molecular formula and formula unit is same. For example, formula unit of common salt consists of 1 sodium ion and 1 chlorine ion and its empirical formula is NaCl. So you have to write down this question. First paragraph, from this into this I write
the definition of empirical formula with example. One example of silicon dioxide. And the second paragraph, I write down the formula unit with special reference to empirical formula. So this is the question number 1. And this question number 2, how can you differentiate between molecular formula and empirical formula? So dear students, to write down this question, you have to draw a table. And the question is written in this notes is in the form of not in the form of table. Just I wrote the definitions of the two with examples. How can you differentiate between molecular formula and empirical formula? हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली जब कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले जो है वो ड्रॉ कर लेना चाहिए एक टेबल. वी हैव टू ड्रॉ द टेबल, और उस टेबल के अंदर हमें जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला और सेकंड साइड पे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का लिखना चाहिए. फिर हम इनकी डेफिनेशंस लिखें और यहाँ पे हम इनकी एग्जाम्पल्स दे दें. तो ये एक अच्छा तरीका है लिखने का, डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो मैंने यहाँ पे चूँकि नोट्स ऑलरेडी आई हैव डन, तो इसलिए ये है कि यहाँ पे तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप अपना नेक्स्ट जो है वो टेबल की फॉर्म में लिख लें, बिकॉज डिफरेंस हमेशा टेबल की फॉर्म में ही लिखा जाता है. तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर जो डिफरेंस है उसको हमने कहा कि इनको टेबल में लिखना है. तो टेबल में भी आप यही लिखें कि पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लें या बाद में लिख लें. मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट present in one molecule of substance is called molecular formula. For example, molecular formula of water is H2O. And empirical formula, the formula that shows the simplest whole number ratio of atoms of different elements in a compound is called empirical formula. और इसका हमने यहाँ पे आंसर जो इसकी एग्जांपल है वो बेंजीन की दी हुई है. वी हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ बेंजीन. प्रिपेयर्ड नोट्स हैं जहाँ से मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना. ये आंसर्स 100% बुक से हैं, और बुक का जो पैराग्राफ है आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पहले क्वेश्चन के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला की हमने डेफिनेशन लिखी है. वी हैव राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, और उसके बाद हमने उसकी एक एग्जांपल दी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की. उसके बाद हमने जिक्र किया फार्मूला यूनिट का, कि फार्मूला यूनिट जो है वो कैसे एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है और इसका क्या ताल्लुक है एम्पिरिकल फार्मूले से. और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपको मैंने बताया कि इसको आप टेबल की शक्ल में लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है. उसके बाद है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑन और मॉलिक्यूलर फार्मूला. इनमें से ये बताना है कि कौन से जो हैं वो फार्मूला यूनिट्स हैं, यानी आयनिक कंपाउंड्स हैं, या मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं. तो ये बड़ा आसान तरीक़ाकार होता है. आसान तरीक़ाकार इस तरीके से है कि आप ज़रा जहन में बिठा लें कि जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कि जिनके आयन्स आप समझते हैं बन सकते हैं, या जिनके अंदर मेटल एटम्स हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, ठीक है ना, तो बैरियम हो गया, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं. नीचे दिया भी हुआ फार्मूला यूनिट्स BaCO3 एंड KBr. तो इसकी मिसाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक करके दे देता हूँ आपको. वो ये है कि Ba+2 और CO3 2-. तो चूँकि ये कैंसिल हो जाएगी वैलेंसी इनकी, तो ये हो जाएगा BaCO3. तो ये एक आयनिक कंपाउंड है. और दूसरे नंबर पे दिया हुआ है KBr का, तो KBr भी K+ और Br-. तो KBr भी एक आयनिक कंपाउंड है. इसकी भी वैलेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, बाद में कैंसिल हो जाएगी दोनों की. तो ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं, और ये बाकी जितने भी हैं सारे के सारे, दीज ऑल आर मॉलिक्यूलर फार्मूला और कोवलेंट कंपाउंड्स. तो ये आपको क्लैरिटी हो गई होगी. वो ये रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है सारा, these are the molecular formulas. H2O2 hydrogen peroxide, CH4 methane, C6H12O6 glucose, C12H22O11
शुगर का फार्मूला है, BaCO3 बैरियम कार्बोनेट एंड KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH एंड फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो आप ज़रा एक दफ़ा, बड़ा एक सिंपल सा सवाल है ये, मैंने यहाँ पे भी इसका आंसर दिया हुआ है कि रीअरेंज CH3COOH इन दिस पैटर्न लाइक C2H2H4, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ सवाल कि CH3COOH, तो इसके अंदर जो कार्बन है इसे इकट्ठा कर लें। तो कार्बन कितने हैं इसके अंदर, इसमें ये एक कार्बन है और ये दो कार्बन है, तो ये हो जाएगा C2। अच्छा, अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और ये 1, 4, तो ये हो जाएगा C2H4। और O कितने हैं इसके अंदर, ये 2 O हैं, तो ये हो जाएगा C2H4O2। ये मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है। तो अब जब हमने इसको रीअरेंज करके लिख लिया है तो उसके बाद हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो 2 जब कॉमन निकलेगा इसमें से तो ये रह जाएगा CH2O, इट विल रिमेन CH2O। तो ये जो CH2O है, दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH। अब आपको सिंपल सा जिस तरह तरीका बताया हुआ है कि कार्बन का 12 है प्लस और हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 प्लस H का 1, तो हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 16 32 प्लस 1, 12 और 12 24 और प्लस 3 24 और प्लस 3 हो जाएगा 27 और 32 प्लस 1, 32 और 1 33 और 27, 7 2 9 1 0 60 आंसर आएगा इसका 60 AMU। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है 60 AMU। उस तरीके से ही जो फार्मूला था इसे इकट्ठा करके हमने यहाँ पे लिखा है, और वो फार्मूला है CH3COOH। इस फार्मूले को हमने जो है वो क्या कहते हैं, इकट्ठा कर लिए कि C 2 दफ़ा दिया हुआ है तो C का 2C लिख दिया है, और 4H है। और जिस तरह मैंने यहाँ पे किया आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जिस तरह मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द फार्मूला मैसेज ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट ZnSO4। आपको पता है अपने रेडिकल्स पढ़े हुए थे ये सल्फेट का और ये CO3 कार्बोनेट। तो जो पहला कंपाउंड है उसका नाम है सोडियम सल्फेट, दैट इज़ Na2SO4। और उसके बाद सेकंड है जिंक सल्फेट, सेकंड वन को मैं वहीं पे लिख देता हूँ जिंक सल्फेट ZnSO4। और थर्ड वन है कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो इन सारों को हम जो है वो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा। वैसे तो यहाँ पे ये सॉल्व हुए हैं, हम यहीं से ही कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी करके दिखाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा आपको। तो फार्मूला मास ऑफ Na2, उसमें देखें सोडियम का दिया हुआ है 23 और सल्फ़र का है 32 और ऑक्सीजन का है 16। तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 142 AMU। इस तरीके से फार्मूला मास ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक की वैल्यू है 65.4 एंड सल्फ़र इज़ 32 और ऑक्सीजन की है 16। तो इनको फिर हमने जब, क्योंकि ऑक्सीजन 4 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की वैल्यू 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 16 4 64 और आंसर आ जाएगा
0.4 AMU, ठीक है। और लास्ट जो है वो मैं आपको कर देता हूँ, CO3 दिया हुआ है। तो इसका यानी कि अगर हम करेंगे दैट इज़ द, इसका मैथ्स अगर कैलकुलेट हम करें तो Cu का होता है 63.5 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होगा 3 इंटू, ये हो जाएगा 48 प्लस 12 प्लस 63.5। तो ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, 63.5 प्लस 12 प्लस 48.5, 3 प्लस 2 5, 5 और 8 13, 6 और 1 7 और 1 8 और 4 123.5 AMU आंसर आता है हमारे पास कॉपर कार्बोनेट का। वी हैव सॉल्व ऑल द 5 क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट योरसेल्फ 1.4। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आर्टिकल है दैट इज़ 1.3 केमिकल स्पीशीज़। इस केमिकल स्पीशीज़ के अंदर हमने जो पढ़ना है टॉपिक्स दैट आइंस, कैटाइंस एंड एनाइंस, मॉलिक्यूलर आइंस एंड फ्री रेडिकल्स। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ आइंस के बारे में बात करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के बारे में बात करेंगे। आइन एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसके ऊपर एक चार्ज होता है। आइन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। द चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर डेफिनेशन ये है कि आइन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट, कि उसके ऊपर एक चार्ज होता है और चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। सो इनकी 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइन। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ आइंस, कैटाइन एंड एनाइंस। तो यहाँ तक जो है अगर हम मार्क कर लें तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो सकती है कि हम कह सकते हैं कि ये आइंस की डेफिनेशन, यहाँ से ये हमारे पास आइन की डेफिनेशन है। उसके बाद आप हेडिंग दे कैटाइंस, ठीक है जी। कैटाइंस की डेफिनेशन है यहाँ से फ्रॉम एन एटम से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। यानी कि उसकी एग्जांपल्स भी हैं, तो यू कैन गिव 2 एग्जांपल्स, आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। हमने डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। तो वैलेंसी के कॉन्सेप्ट के अंदर होता ये है कि एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में या तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं या उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। इन्हीं को हम आइंस कहते हैं। देखें यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो क्या बना हमारे पास, जो है वो एन आइन, कैट आइन बना। कैट आइन यानी कि पॉजिटिव आइन, ये हमारे पास एक पॉजिटिव आइन बन गया। इस तरीके से हमारे पास सोडियम था। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल होता है 281, तो उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया और वो बन गया Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उससे क्या हो गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसे हम बोलते हैं कैट आइन। इस तरह से कैल्शियम जो था, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिए और उसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। तो ये जो है हमारे पास है पॉजिटिव आइंस की बात। तो दोबारा से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। आइंस आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज़ पॉजिटिव आइन दैट इज़ कैट आइन एंड सेकेंड इज़ एन आइन दैट इज़ नेगेटिव आइन। कुछ आइन पॉजिटिव आइन होते हैं और कुछ नेगेटिव आइन होते हैं। अच्छा जी, तो एटम्स जो हैं उसमें देखें, अब यहाँ से मैं दोबारा आपको मार्क कर देता हूँ। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कैट आइन की हेडिंग देनी है और ये इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो आप 2 एग्जांपल्स कोई से भी कर लें, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा यानी कि हार्ड वर्किंग हैं वो सारे की सारी एग्जांपल्स करें।
उसके बाद दूसरी हेडिंग बनती है एनाइंस की। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन। एनाइन इज़ फॉर्म्ड, एनाइन कब बनता है? बाय गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एंड ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, क्लोरीन आयन एंड ऑक्सीजन आयन, ये दो आयन कैसे बनते हैं ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं। देखें, क्लोरीन को अगर मैं आपकी को बात करूँ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2, 8 और 7। उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम से हासिल कर ले तो क्लोरीन 2, 8, 7 बिकम्स Cl नेगेटिव आयन, और इसमें हो जाएंगे 2, 8, 8, और वो इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से अगर ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो जाएंगे और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ही ऑक्सीजन जब दो इलेक्ट्रॉन जो उसकी ज़रूरत है पूरे हो जाते हैं तो उसके साथ -2 चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो दोबारा से आपको बता दूंगा कि एटम आयंस कब बनाते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसे हम एन आयंस बोलते हैं, यानी नेगेटिव आयंस। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उन्हें हम बोलते हैं कैट आयंस। अब आपने करना ये है कि इसकी आप कैसे है इस सवाल को आप कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आयंस की, उसके बाद आप हेडिंग दें कैटाइन, फिर उसकी आप एग्जांपल्स दें कैटाइन की, फिर उसके बाद आप एनाइंस की 2 एग्जांपल्स आपने लाजमी देनी है, 2 एग्जांपल्स एट लीस्ट। उसके बाद आप N9 की एग्जांपल दे दें तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पहले आपने आयंस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर जितना मार्क करवाया हुआ, फिर कैटाइंस की, फिर उसकी एग्जांपल्स, फिर N9 की, फिर उसकी एग्जांपल्स देनी है आपने। थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स आपने ये ज़हन में रखना है कि होता मैथमेटिक्स में ये है कि नॉर्मली जब आप कोई चीज़ गेन करते हैं तो तब आपके ऊपर प्लस का चार्ज आता है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में जो चीज़ आप गेन करने वाले हैं वो खुद नेगेटिव है। इसलिए आप ये समझ लें कि मैथ से उलट आपने सोचना है कि व्हेन यू आर गेनिंग यू गेट नेगेटिव चार्ज। जब आप गेन कर रहे हैं केमिस्ट्री में तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब आप लूज़ कर रहे हैं केमिस्ट्री में तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। लूज़ करने के नतीजे में आप बनाएंगे कैटाइन, और गेन करने के नतीजे में आप बनाएंगे एनाइन। लूज़ करने के नतीजे में आपके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और गेन करने के नतीजे में आपके पास आएगा नेगेटिव चार्ज। सो डियर स्टूडेंट्स, it's over for you today. I hope you will enjoy the lecture of today. For better understanding, for better concept understanding, इस लेक्चर को आप बार बार देखेंगे पॉज करके, क्योंकि आपके पास काफ़ी फ्री टाइम अवेलेबल है। तो जब आप इस लेक्चर को बार बार देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाएगा और आपको याद करने में आसानी होगी। आज की असाइनमेंट डियर स्टूडेंट्स ये है कि आप टेस्ट योर सेल्फ 1.4 को समझें और उसको सॉल्व करें, और उसके बाद आप आयंस को डिफ़ाइन करें, इसकी टाइप्स और इसकी एग्जांपल्स को क्वेश्चन एक बनाएं, एक क्वेश्चन के डिफ़ाइन आयन एंड डिस्कस इस टाइप्स विद एन एग्जांपल। आप दूसरा सवाल डिफ़ाइन आयन और डिस्कस इस टाइप विद एग्जांपल, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप इसको लिखें। वेल डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you very much for today. Allah Hafiz, dear students.